کی حضوری میں جب ہم منتیں مان لیتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کرتے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں ہم غور نہیں کرتے، لیکن ان نقصانوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگیوں میں آتے ہوئے۔ اور جو ان منتوں کو پورا کرتے ہیں تو خدا ان کو کس قدر بلیس کرتا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے۔ اور میرا پیغام آج کا ذرا تھوڑا سا سخت بھی ہے کہ خادموں کے حوالے سے بھی، کہ خادموں کا خداوند نے کیا حکم دیا ہے، کہ خادموں کی کیا ذمہ داری ہے اپنی کلیسیا کو بتانے کے حوالے سے۔ تو اس میسج میں یہ ساری باتیں آپ تک پہنچیں گی، اور میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش اس کا 28 باب۔ ہم پڑھیں گے، یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور جو مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ اس سے پہلے کہ یعقوب یہ منت مانتا وہ سویا ہوا تھا۔ ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہ سو رہا تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ سیڑھی سے فرشتے آ جا رہے ہیں، اور ایک دم سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا یقیناً یہ تو خدا کا یہاں گھر ہونا چاہیے، یہاں خدا کی حضوری ہے، اور اس کو محسوس ہوا کہ خداوند یہاں پر موجود ہے، اور اس نے منت مانی۔ کیوں؟ اس کی تربیت کیسے تھی؟ اس کو کیسے پتا تھا کہ میں نے خدا کی حضوری میں 10واں حصہ دینا ہے؟ اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، اور اس کے باپ نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، یعنی کہ باپ ابراہیم سے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ باپ ابراہیم نے کس سے سیکھا تھا، جبکہ اس کا باپ تارا کے بارے میں بائبل میں پڑھا ہے کہ وہاں پر کہیں پر نہیں لکھا کہ تارا خدا کو 10% دیتا تھا یا یکیا دیتا تھا یا اپنے خزانوں میں سے نکال کر خدا کی حضوری میں لے کے آتا تھا، ایسا کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے۔ جب باپ ابراہیم پیدا ہوا تو اس وقت جو بادشاہ تھے سارے، انہوں نے پیشن گوئی یا نجومی جو بھی تھا، انہوں نے پیشن گوئی کی کہ باپ ابراہیم ایک بزرگ نبی ہوگا، ایک بادشاہ کی حیثیت رکھا جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ بن گیا تو ہماری عزت کیا رہے گی، ہماری قدر کیا رہے گی۔ انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ تارا، اس کی باپ ابراہیم کا باپ جو تارا تھا، اس نے اور اس کی فیملی نے ابراہیم کو لیا اور نوح کے پاس لے گئے۔ 30 سال وہ نوح کی پرورش میں رہا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو نوح ہے اس نے زمین پر ایک ایسا خدا کے لیے بڑا کام کیا، خدا کی فرما برداری میں وہ رہا کہ اس نے طوفان میں بھی خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ وہیں سے باپ ابراہیم کی تربیت ہوئی، اور جب باپ ابراہیم بڑا ہو گیا، اپنے آباد میں آ گیا اپنے ماں باپ کے پاس، کہ جو معاملہ گرم تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنی فیملیز میں آ گیا، شادی ہوئی، لیکن اس نے دل میں جو تربیت نوس اس نے پائی تھی اس تربیت کے مطابق وہ چلتا رہا، خداوند کی حضوری میں چلتا رہا، خداوند کو دیتا رہا۔ یہی چیزیں اس کے بیٹے نے سیکھی، اسحاق نے اپنے باپ سے سیکھا دینا، خداوند کی حضوری میں عمدہ سے عمدہ چیزیں، اچھی سے اچھی چیز اپنے گھر سے نکال کر خدا کی حضوری میں دینا۔ خدا اس ہدیے و نذرانوں کو کیا کرتا تھا؟ قبول کرتا تھا، اور اس کی عوض خدا کئی گنا برکت دیتا تھا۔ ہمارے پاس کیا 100% ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے پرسنٹ ہم خدا کو دیتے ہیں؟ صرف 10%، اور اس 10% کے حوالے سے ہمیں واپس کتنا آتا ہے؟ اس سے کئی گنا ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ ہمارے گھرانے میں بیماری نہیں آتی، ہمارے کچن میں کوئی دیمک نہیں لگتی، کوئی ٹڈی ہمارے حاصل کو ضائع نہیں کرتی، ہم عام درخت میں سلامتی سے جاتے ہیں اور سلامتی سے ہی واپس آتے ہیں۔ چوتھا کیا ہوتا ہے؟ ہماری جاب لیس پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند کو ہم دے رہے ہوتے ہیں وفاداری کے ساتھ۔ اسی طرح ملاکی کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا،
मलाकी उसका 3 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 7 बाब से, लेकिन उसकी आधी हेडलाइन के पास जाएंगे 6 से। रब्बुल अफवाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? यकी और हदिया में पास तुम सब मालूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरे इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैंने तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारे जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। हमने अक्सर देखा है कि जहाँ कहीं खादम मैसेज यकी पर दे तो अक्सर लोग यही बात करते हैं कि खादम को तो बस एक ही काम है, बस लेने का। वो किसी ना किसी हवाले निकालता है और कलीसिया को देना शुरू कर देता है कि दे। ये आपके लिए एक सबर है। पुराने अहनामे में भी और एक नए अहनामे में भी आपको बताऊंगी कि यीशु ने भी हुक्म दिया है देने के हवाले से। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बरकत को रोक रहा है। अगर खादम आपको ये बात कह रहा है कि आपको 10% देना है तो आप दें, और उसके बदले में खुदावंद ने फरमाया है कि तुम मुझे आजमाओ और देखो मेरे घराने में खाने की कमी ना हो। और जब तुम मुझे देते हो तो तुम ध्यान इस बात पर गौर करो कि जब तुम मुझे देकर अपने घर में जाते हो तो तेरे घर में किस कदर खुशहाली आई है। इन बातों पर भी तुम गौर करो, क्योंकि जब हम 10% खुदावंद की हजूरी में दे जाते हैं तो अपनी जिंदगियों में गौर नहीं करते। हमारे दिल में एक बात आ जाती है, वो 10% अगर ना दिया होता वो हम फला जगह पे लगा देते, फला जगह, चले खुदा को अगले महीने से। इन बातों को हमारी ज़हनों में अपनी वो बातें डाल देता है, जबकि आप खुशी से देने वाले बने। हाबिल और काहिन को देखे, हाबिल का हदिया नजराना कबूल किया गया, क्यों? वो खुशी से खुदावंद की हजूरी में लेके आया था। और काहिन के दिल में एक बात आ गई थी, ओहो ये मैं खुदा को दे दूं, क्यों दूं, कैसे दूं? इन बातों को जब हम ले देते हैं तो अपनी बरकत को क्या करते हैं? रोक लेते हैं। जब हमारी बरकत रुक जाती है तो फिर हमारी जिंदगियों में परेशानियां, दुख, तकलीफें, बीमारियां, लाचारियां, कमजोरियां, ये सब कुछ आ जाता है। जब एक इंसान की सैलरी आती है तो उस सैलरी में वो सोचता है, बेशक उसके ज़हन में हो कि मैंने यकी देनी है, लेकिन एक बात उसके दिल में आती है, सबसे पहले घर का रेंट देना है, दूसरे नंबर पे बच्चों की फीसें जानी है, तीसरे नंबर पे घर का राशन डालना है, बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल है, पानी का बिल, ये सब कुछ करने के बाद वो फिर सोचता है कि मैंने यकी भी देनी है। क्यों? खुदावंद को इन पे क्यों रखा है? जिसने आपको बरकत देनी है, जिसने आपको खुशहाल करना है, जिसने आपको आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसानी है, उसको इन पे क्यों रख रहे हैं? क्या किराया देकर आपको वापस उतनी बरकत मिलेगी? कभी नहीं। जब आप सैलरी लेके आते हैं, खुदावंद के घर में लेके आए और उसको खादम के सामने रखें, उसे कहें, खादम को कहें कि इस पर दुआ करें, इन पैसों पर दुआ, बरकत की दुआ करें, ताकि हमारे रुपए पैसे पर बरकत ठहरे, ताकि जब हम ये खर्च करें तो पूरा महीना ये पैसे हमारे पास खत्म ना हो। सबसे पहले अच्छे और खूबसूरत नोट, नए नए नोट निकाल कर अपने लग सबसे पहले रखें, बाद में किराया दें, बाद में बच्चों की फीसें, बाद में राशन, सब कुछ बाद में करें। सबसे पहले क्या करें? यकी को खुदावंद के घर में लेके आए, फिर देखिएगा खुदावंद आपको किस कदर बरकत देगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बच्चा है छोटा, वो अपने बाप से कहता है, बाप मुझे केक चाहिए। हर रोज एक बात बोलता है, बाप कहता है अच्छा बेटे मैं ले दूंगा। एक दिन उसका बाप उस पर बड़ा तरस आता है, प्यार आता है, उस अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसको बहुत अच्छी और आला किस्म की बेकरी के पास लेके जाता है, वहां से केक दिलाता है। अब उसका बाप उसको देख रहा है, उसके बेटे ने उस केक को पकड़ा, कई महीनों से अपने बाप के आगे उसने दरखास्त रखी हुई थी केक की। अब वो केक उसने पकड़ा, बाप उसको मोहब्बत से देख रहा है, बाप ने उससे मांगा नहीं, लेकिन बेटे ने क्या किया, उसमें से थोड़ा सा निकाल के अपने बाप को दे दिया। बाप इंतहाई खुश, उसने लोगों को बताया, देखो मेरा बेटा जिसको
जिसने कई महीनों से मेरे आगे दरख्वास्त की हुई थी कि बाप मुझे केक लेके दे, उसको तलब थी, उसको जरूरत थी, लेकिन उसने वो केक खाया नहीं, उसने खुद नहीं खाया, सबसे पहले मुझे निकाल के दिया। बाप ने ये नहीं कहा इतना सा निकाल के दिया, बाप ने कहा उसमें से मुझे उसने निकाल के दिया और मैंने खाया, और मैं बहुत खुश हूँ अपने बाप, अपने बेटे से। क्यों? वो मेरी फर्मा बरदारी में, उसको मेरी फिक्र है, उसने अपनी फिक्र नहीं बल्कि मेरी फिक्र की। इसी तरह अजीजों आपको भी चाहिए, आपको अपनी नहीं बल्कि खुदा के घर की फिक्र होनी चाहिए कि क्या खुदा के घर में किस चीज की जरूरत है, हम देखें, ताकि जब हम खुदा के घर की जरूरियात को देखेंगे कि खुदा के घर में इस चीज की जरूरत है, तो खुदा आपके घर पर नजर करेगा, आपकी जरूरियात को पूरा करेगा, क्योंकि खुदा की नजर आपको देख रही है। आप चलते फिरते हैं, आप बातें कर रहे हैं, खुदा आपकी बातें सुन रहा होता है। आप दुआ में जो मांग रहे हैं, आप चलते फिरते जो बातें कर रहे हैं, उसको मैनेज करके फिर खुदा आपको बरकत देता है। दुआ में हम मांग लेते हैं तो खुदावंद हमें ये चाहिए, ये चाहिए, दुआ में उठते ही हम कह देते हैं पता नहीं ये हालात हमारे बदलने हैं कि नहीं बदलने, पता नहीं ये काम होना है कि नहीं होना। क्यों कमजोरी है हमारी जिंदगियों में? जब हम खुदावंद की हजूर में वफादारी से चलेंगे। बनी कौम इसराइल आज क्यों इतनी बरकत पा रहे हैं? इसीलिए कि वो खुदा की हजूरी में दयानतदारी से चलते हैं, खुदा को देने में वो दरेग नहीं करते, शरीयत में जो लिखा है उस पर वो अमल करने की कोशिश करते हैं। आगे हम यीशु मसीह की तालीम को देख लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामे में दैयकी का जिक्र है, नए अहदनामे में कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं यीशु ने कहा कि दैयकी दिया करो। यीशु मसीह ने कहा है, बात सिर्फ ये है कि गौर करने की। आज आप इन बातों पर गौर करेंगे तो यकीनन मेरे ईमान है कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत देगा। आए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, सॉरी लूका की अंजील, उसका 11वां बाब। उसका 42 आयत नंबर है। लेकिन ए फरीसियों, तुम पर अफसोस के पदीने और सदब और हर एक तरकारी पर दैयकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था, गौर कीजिएगा, यीशु ने कहा था लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। क्या यीशु ने मना कर दिया था कि खुदा को नहीं देना आप लोगों ने? यीशु ने तो यहाँ पर फरीसियों पर अफसोस किया है, जो लोग नहीं देते उन पर खुदावंद ने अफसोस किया है कि तुम पर अफसोस है कि तुम लोग देते हो। जो लोग देते भी हैं तो उनके आगे भी क्या था कि वो और क्या करें, मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत में झिगड़े रहें। बहुत से लोग हैं जो दैयकी को 10% लेकर खुदा की हजूरी में ले आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में यीशु की मोहब्बत नहीं होती, वो इंसाफ पसंद नहीं होते, वो अपने बच्चों में इंसाफ नहीं कर पाते, अपने बीवी में इंसाफ नहीं कर पाते, अपने घराने में इंसाफ कर नहीं कर पाते। इन चीज़ों से खुदा आपके रुपए पैसे का भूखा नहीं है, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत का भूखा है, आपकी तवज्जो का भूखा है। वो चाहता है कि आप आए उसके पास, हर रोज उसके पास आए। ये नहीं कि संडे का दिन है चर्च में आए, उसके बाद आप 8 दिन खुदा को शक्ल न दिखाएं, अपने घर में मजबे बनाएं। किसी दिन मैं आपको मैसेज दूंगी कि खुदावंद ने हुक्म दिया कि जब तू घर बनाए तो अपने घर में एक दुआ वाला कमरा बना। हम बहुत से अपनी फैमिलीज में बना करते हैं बातें कि जी घर बन गया, बेटे की शादी करी, बेटे के लिए ऊपर कमरा बना दिया जाए, फलानी बेटी की शादी है, दामाद नहीं आना, उसके लिए कमरा बना दिया। क्या कभी सोचा कि जब हम घर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे घर में क्या होना चाहिए? प्रेयर रूम होना चाहिए, जहां हम हर रोज वो जगह पाक हो, जहां हम बैठकर खुदावंद की इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। जब हम अपने घरों में यीशु को जगह देंगे तो तभी यीशु आपको जगह देगा ना। क्यों कलीसिया तरक्की नहीं कर रही? इन्हीं बातों से, क्योंकि खुदा की बातों पर हम नहीं चलते। ये दैयकी सिर्फ कलीसिया पर नहीं, खादमों पर भी लागू है। खादम का भी हक बनता है तो दे। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा, ये खादमों के हवाले से है, गिनती निकालिएगा और उसका 18 बाब।
गिनती 18 बाब और उसकी 25 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये खादमों के हवाले से है, तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दैयकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दैयकी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजारना। ऐसा नहीं है कि कलीसिया पर लागू है कि वो खुदा की हजूरी में 10% लेके आए, ये खादमों पर भी लागू है, चाहे वो प्रस्तिश करने वाले हों, चाहे वो कलाम सुनाने वाले हों, या मीटिंग लीड करने वाले हों, या क्वायर में खड़े होने वाले हों, कोई भी हो, हर एक शख्स पर ये लागू है कि वो खुदावंद की हजूरी में अपना 10% ले। आगे हम देखते हैं कि अब्रानियों उसका 7 बाब 1 से 5 आयत तक हम देखते हैं कि जो आदमी अपनी कलीसिया को ये बात नहीं कहते कि आपने 10% देना है, या अपने चर्च में 10% की तालीम नहीं अपनी कलीसिया को देते हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। वो अपनी बरकत भी रोक रहे हैं और आप लोगों की भी बरकत को रोके हुए हैं, क्योंकि जब तक आपकी तरबियत नहीं की जाएगी, आप कैसे खुदावंद के घर में लेके आने वाले बनेंगे। हम अब्रानियों के नए अहनामे में, अब्रानियों में और उसके 7 बाब और 1 से 5 आयत में हम देखते हैं। अब गौर कीजिएगा, और ये मुल्क सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था, तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसी के लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दययकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मौके पर रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बेमां, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। यानी कि बाप इब्राहिम जब बादशाहों को कत्ल करके या जंग करके आता था, तो वो क्या करता था? यसु मसीह सालिम का बादशाह हम किसको कहते हैं? यसु मसीह को कहते हैं कि सुलह और सलामती का शहजादा कौन है? हमारा यसु नासरी। और यसु उसका इस्तकबाल करता था, और वो अपने खजानों में से इब्राहिम क्या करता था? अच्छी चीजें निकालकर खुदा को दययकी देता था। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था, जिसको कौम के बुजुर्ग इब्राहिम ने लूट के उंदा से माल की दययकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का उहदा पाते हैं, उनको हुक्म है, ये लावियों के लिए है जो कहानत का काम करते हैं, खिदमत का काम कर रहे हैं, उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो इब्राहिम ही की सलब से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक दययकी लें। ये खादमों के लिए हुक्म है कि खादम अपने भाइयों से दययकी ले, कलीसिया से क्या करे? दययकी को ले। वो बेशक इब्राहिम के सलब से ही क्यों ना पैदा हुए हो। हम देखते हैं कि गौर करते हैं कि ये पुराने नामे में लावियों को खुदा ने चुना था अपने लिए, कहानत का काम करने के लिए। वो हैकल में लोग चंदा लेके आते थे, दययकी लेके आते, शुक्रगुजारियां लेके आते थे, तो वो लावी रखते थे। अब नया दौर है, मसीह का दौर है, इसमें इब्राहिम के सलब से क्यों ना पैदा हुए हो। हम किससे हैं? इब्राहिम के सलब से पैदा हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम दययकियों को दें, और खादम उन दययकियों को ले और उन्हीं में से 10% लेकर आगे किसी को दे। 10% देना एक अलग चीज है, शुक्रगुजारी देना अलग है, हदिया नजराना देना वो अलग चीज है। कोई ये मेंशन ना करे कि मैंने हदिये में इतने पैसे डाल दिए, मेरी दययकी जा चुकी है, मेरी शुक्रगुजारी जा चुकी है। ये सब चीजें अलग अलग हैं। खैरात करना गरीबों, यतीमों, कलाम में लिखा हुआ है कि जो बेवा और यतीमों को देता है वो मुझे कर्जदार करता है। दययकी के बारे में ये नहीं लिखा कि वो मुझे कर्जदार करता है, बल्कि उनके बारे में लिखा
गरीबों को देता है वो खुदा को कर्जदार करता है, और खुदा किसी का कर्जदार नहीं होता। कलाम में ये फरमाया गया है। ये चीजें अलग अलग हैं, आप हर चीज को अलग नजरिए से देखिएगा। दैयकी को अलग से, शुक्रगुजारी को अलग से, हदिये नजराने को अलग से, और जो खैरात की जाती है गरीबों यतीमों में, वो चर्च में नहीं बल्कि आप अपने हाथों से गरीबों और यतीमों और बेवों की मदद कर सकते हैं। अपने अजीजों में किसी जरूरतमंद को देखें। बाज़-औक़ात अपने अजीजों में ऐसे जरूरतमंद होते हैं जो आपसे कह नहीं सकते, लेकिन उनके हालात आपको मालूम होते हैं। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है तो आप खामोशी से बगैर किसी को बताए उसके जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मेरे बच्चों के टीचर्स हैं सर सलीम, मैं उनके बारे में गवाही दूंगी। उन्होंने मुझे बताया कि बाजी हम जब गांव से आते हैं हमारे हालात बहुत ख़राब थे, इवन के हमारी फैमिलीज के और भी बहुत से लोग आए, लेकिन जैसे हम थोड़े से बड़े हुए हमें खुदा के कलाम की सच्चाई का पता चला और हमने देना शुरू किया। हमने 10% देना शुरू किया, और जैसे ही हमने देना शुरू किया तो हम किराए के घर से अपने घर में आ गया। अब वो पत्थर और टाइल लगवा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही मुझे ये बात शेयर की कि बाजी जब हम लोग नहीं निकालते थे ना पैसा खुदावन के हजूरी में 10%, तब मुझे ट्यूशन 5,000 से ज़्यादा की नहीं मिलती थी, और अखराजात मेरे बहुत बड़े रहते थे। जैसे ही खुदावन की हजूरी में मैंने अपनी सैलरी में से देना शुरू किया तो क्या हुआ, खुदावन ने मुझे बरकत दी, और खुदा ने मुझे 10-10, 20-20 हज़ार की ट्यूशन, एक घंटे की ट्यूशन 20,000 की ट्यूशन उसको मिलती है। किस तरह? जब उसने देना सीखा। उसकी बहन है वो अलग से निकालती, उसकी माँ अलग से निकालते हैं, हर एक बहन भाई अलग अलग जितने वो कमाते हैं हर एक चीज में से वो अलग अलग हिस्से निकाल कर खुदावन की हजूरी में हर हफ्ते देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा हमें बरकत दे रहा है। अगर हम अपना हाथ रोक लेंगे तो खुदा हमें बरकत देना छोड़ देगा। बहुत सी ऐसी और मिसालें हैं। एरियल सरफ को ले ले, दुनिया का नंबर 1 एरियल सरफ है। उसका मालिक क्या करता है? वो खुदा को 10% से उसने शुरू किया था। उसने जब 10% देना शुरू किया तो खुदा ने उसे बरकत दी। उसने खुदा के जुर्म में फिर मन्नत मानी, खुदावंद मैं 20% दूंगा। खुदा ने 20 के बदले में उसे कई गुना बरकत दी। जैसे उसने 20 में देखा कि खुदा ने मुझे इस कदर बरकत दी, वो आगे बढ़ा। उसने कहा खुदावंद मैं 30 दूंगा। 30 से वो 90% पे आ गया। उसने कहा खुदावंद 90% तेरा और 10% मेरा। तो क्या हुआ? वो दुनिया का नंबर 1 शख्स बन गया। अगर आज आप भी दुनिया के नंबर 1 बनना चाहते हैं तो खुदा को देने वाले हाथ बनाएं। मत सोचिए कि हमारी फलां जरूरत है, मैंने ये करना है। जब आप नहीं यकीन देंगे तो याद रखिएगा खुदावंद आपके घर में उन बीमारियों को ले आएगा। बाज़-औक़ात जो चीजें खुदा की तरफ से आती हैं, बाज़-औक़ात बदरूहें भी खुदा के हुक्म से आती हैं। सौल की जिंदगी में बदरू आई, वो खुदा के हुक्म से आई थी। एक कलाम में लिखा है कि उसको बुरी रूह आकर तंग करती थी। किसी इब्लीस ने तो नहीं छेड़ा था। हम हर काम इब्लीस पे डाल देते हैं। ओ ये मेरा काम खराब हो गया, इब्लीस ने ये काम कर दिया। ओ मेरा ये नुकसान हो गया, इब्लीस ने कर दिया। गौर कीजिए कि आपका नुकसान हुआ है कि खुदा किसमें मर्जी थी। आपने खुदा की दैयकी को पूरा नहीं किया, आपने उसके ज़कीरा खाना में लेके नहीं आने वाले बने, इसलिए आपका नुकसान हो रहा है। वो कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। कब दूंगा? जब आप खुदा की हजूरी में देने वाले बन जाएंगे। अपने हाथों को खोलिएगा मत। ये भी मैं आपको एक बात मेंशन कर दूं, अक्सर औक़ात हम सोच लेते हैं कि हम खुदावंद तुम्हें देंगे, जरूर देंगे। हम बुक में लिख लेते हैं खुदावंद इस महीने तुम्हारा इतना हिस्सा बनता है, हम अगले महीने देंगे। इकट्ठे कर रहे हैं। खुदा इकट्ठे करने वाला की बात नहीं सुनता। हमारे अजीज हैं, उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने हर महीने दैयकी को पकड़ा, लिखा खुदावंद इतना तेरा हिस्सा बन गया, हम तेरे घर में जाकर अगले महीने देंगे। अगला महीना आ गया, फिर कहा खुदावंद हम अगले महीने देंगे, हमने लिख लिया है, हम बेईमान नहीं है, हम ईमानदार हैं, हम लिख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या हुआ? खड़े खड़े उनकी भैंस मर गई। फिर भी उन्होंने गौर नहीं किया इस बात में। फिर गाय मर गई। जब ऐसा नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने गाय को छोड़ा, सबसे पहले अपने बीवी बच्चों को लिया, लाहौर लेके आए और खुदा के घर में दैयकी जितनी जमा थी वो सारी दी, क्योंकि वो जानता था कि ये खुदा ने मेरे साथ किया है। खुदा जानता है मैंने खुदा की दैयकी को रोका है। तब मेरी बरकत रुकना शुरू हुई। तब मेरे घर में
मौत का फरिश्ता आया है। अगर खुदा की हजूरी में मैं वफादारी के साथ चलता तो खुदा उन दरवाज़ों को बंद कर देता है जो हमारी ज़िंदगियों में बीमारियां लेके आती हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात लेके आती हैं। आज हमें इस बात पे गौर करने की अजीज़ों ज़रूरत है कि हम किस तरह किस रुख की तरफ जा रहे हैं। क्या हम आज बरकत के वारिस बनना चाहते हैं या उन बीमारियों के जो बीमारियां हमारी ज़िंदगियों में आ चुकी हैं। आप एक दफ़ा खुदावन की हजूरी में पूरी वफादारी के साथ तौबा कर लें कि खुदावन मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत से कामों में तुझे ठगा है, मैंने तुझे दया यकीन में ठग लिया है, मैंने तुझे हदिया और नजराने में ठग लिया है, मुझे तू आज माफ़ कर दे, मुझे अपने बेटे यीशु के नाम से माफ़ कर दे। वो बाप है, वो उसका दिल नरम है, वो आपको माफ़ कर देगा। और आइंदा जो वादा करे, जो मन्नत खुदा की हजूरी में आप माने, उसको पूरा करने के लिए खुदा के साथ वफादारी के साथ चलें कि खुदावन आइंदा मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। खुदावन आज के बाद बाप तू बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। आइंदा के बाद मैं पूरी दया को तेरे घर में लेके आऊँगा, मैं हदी और नजराने में तुझे नहीं ठगूंगा, मैं शुक्रगुजारी में तुझे नहीं ठगूंगा, मैं तुझे लोगों की मदद जब यतीमों गरीबों को देने में भी नहीं ठगूंगा, मैं किसी तौर पर तुझे नहीं ठगा, बल्कि दुआ में बैठकर तेरी मर्जी चाहूँगा कि खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूँ। जब हम दुआओं में बैठ जाते हैं तो खुदावन से अपनी ही बातें कही जाते हैं, अपनी ही ज़रूरतों को पेश करते हैं। कभी यीशु की बात सुनी है? तो कलाम में लिखा हुआ है, उसके शिगिर्द जब दुआ करते थे तो वो दुआ करते थे, वो मांगते नहीं थे। ये खुदावन यीशु उनसे काम लेता था, इसी वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने बदल कर रख दिया था। यूरोप के जितने मुल्क था, जितनी वहाँ पर गंदगी थी, जितनी नापाकी थी, खुदावन का एक एक शिगिर्द वहाँ गया था। आज पाकिस्तान क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि आज हम अपनी ही कहीं जा रहे हैं, हम यीशु की नहीं सुन रहे। हमें ज़रूरत है यीशु की सुने। यीशु क्या चाह रहा है? यीशु आपसे और मुझसे काम क्या लेना चाह रहा है? हम गौर करते हैं कि सलीब के कदमों में क्या याकूब खड़ा, यूहन्ना खड़ा था अपनी उसकी माँ मरियम के साथ, वो खामोश खड़ा था। वो यीशु से उस वक्त कुछ मांग नहीं रहा था कि यीशु मुझे अब तो तू दुनिया से जाने वाला, मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे। वो खामोशी से खड़ा था क्योंकि वो यीशु की सुनना चाहता था। एक काम दिया कि यूहन्ना ये आज से ये तेरी माँ है और तू इसका बेटा है। तब यीशु बात करता है जब हम खामोश होंगे, जब हम अपनी ही कहीं जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो यीशु कहेगा ठीक है। और जब यीशु के बोलने की बारी आती है तो हम कहेंगे आमीन। खुदावन हम जा रहे हैं, मेरी ड्यूटी का टाइम आ रहा है, मैं कहाँ जगह जा रहा हूँ, मुझे ये काम है, मैंने खाना बनाना है, मैंने वो काम करना है। यीशु खामोश खड़ा रह जाता है, बात करना चुप कर जाता है। अच्छा मेरे बेटे, तुझे जिन चीज़ों की जरूरत हो मैं तुझे देता है, लेकिन मैंने जो तुझसे कहना था तूने तो मेरी सुनी ही नहीं। गौर कीजिएगा, आज अपने खुदावन की भी आवाज़ को सुनिएगा, अपनी दया यकियों को वफादारी के साथ लेके आइए। आज आप प्लीज़ तौबा करें। जिन जो लोग हैं, जो बहन भाई, अगर किसी को मेरा मैसेज ये दिल दुखा दिया है तो सॉरी, लेकिन खुदावन का जो कलाम फरमाता है मेरी जिम्मेदारी थी आप तक पहुँचाने की। तो खुदावन आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीले से।